Hi guys, welcome to part 2 of the Aizer Kolkata campus tour video. If you've seen the first video, you know कि मैं थक गई थी, मैं पूरा कवर नहीं कर पाई थी. तो ये हॉस्टल एरिया है एंड इसके क्लिप्स मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ. उसके बाद लेट्स स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट ऑफ. This is a view of the NSCB girls hostel from outside. That's my plans. And if you still haven't watched the first video, then I suggest you go watch that first. Otherwise, आपको इसमें context समझ नहीं आएगा. At the front, you can see the water tank area. Then on the right is all the basketball ground and everything. And on the left is where we're going towards LHC. This is the guest house. And on the left is the ICVS right now. And सामने LHC. To make things easier, I thought let's look at the map, and first I'll show you the route that I covered in the previous video, and then I'll show you where we'll go today. So yesterday I started from here, the auditorium and the pond, as you can see. Then I took this road and I also showed you campus school, and then we were on this bridge, and then I went to gate number 7, and after that I walked this entire stretch, walked till gate number 1, and then I came from here. And then this is where the bus was coming, and then I showed you the athletics ground, and then this is the academic building, and then this whole area was, there were dahlias, and this is where the flag was, and then there's the pond. This is the straight road that we walked, and we crossed utility building, and this is the place where I showed you the basketball, volleyball ground, all of this. So this part is covered, okay? So the part that is left is this side. So this is what we're gonna cover in today's video. So today even Abhishek bhai is here क्योंकि मैं थक तो गई थी, but major reason ये भी था कि वो एरिया थोड़ा डरावना है, मतलब सुनसान सा है, और वहाँ पे मतलब वाइल्ड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ है प्लांट्स का, तो थोड़ा सांप का भी डर लगता है, और ऐसे जेन्युइनली थोड़ा ईरी लगता है. And we are walking past the director's bungalow right now. This is the football field, and this is the faculty residence, one of the faculty residence. That is the SAC building. और जैसे मैंने बोला, ये फुटबॉल ग्राउंड है, SAC building, और उसके पीछे जो है वो है क्रिकेट ग्राउंड. तो वहाँ पे वॉलीबॉल बास्केटबॉल ग्राउंड दिख रहा है. Those are the hostels, NSCB फिर ICVS. This is the SAC building. And after this is the Nivedita hostel. So when students come at first for a BSMS degree, they stay in Nivedita for first 2 years, and then they can apply for NSCB or ICVS. But since I am a master's student, so I got into NSCB only. And there's also a separate room tour video that I made. You can go watch it on YouTube. We will go inside SAC building in a while, but क्योंकि वो area थोड़ा सुनसान है, तो daylight जाने से पहले उस area में चले जाते हैं. फिर SAC building में आके I'll show you every other room that there is in the SAC building. This is a little practice cricket ground. This is not the main cricket ground. उसके बाहर जो boundary है green, that is the main cricket ground. एंड दिस इज़ द निवेदिता हॉस्टल. निवेदिता हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर में एक नाइट कैंटीन है जो शाम के 7 बजे से खुलता है और रात के 3 बजे तक रहता है. तो दैट इज़ दी ओनली प्लेस वी कैन गो टू अगर हम लोग को मिड नाइट क्रेविंग्स होती है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरीज़ नहीं आती है उतनी. डोमिनोज़ तो आता ही नहीं है, और आई नो राइट, डोमिनोज़ नहीं आता है इसको, मतलब मेरा फेवरेट है डोमिनोज़. एंड लाइक इनफैक्ट अगर डोमिनोज़ का आप कॉल करके बोलो ना आप एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज दोगे, वो फिर भी नहीं आएंगे. तो वो है. बट जोमेटो में क्या आते हैं, वाव मोमो आ जाता है, और क्या आता है, और वगैरह जो रीजनल हो गए, लोकल लोकल शॉप्स वगैरह आते हैं, लोकल या फिर एम्स के सामने वाला लोकल. गेट नंबर 7 में कुछ ही रेस्टोरेंट्स है, एक माई हार्ट हो गया और सैंटोरिनी सिप्स, यही 2 जोमेटो से. वही नया खुला है मोमो लैब. हाँ वो बस यही कुछ. एंड दिस इज़ द नाइट कैंटीन. ये अभी बंद है, ये ग्राउंड फ्लोर वाला.
एंड दिस इज़ द लॉन टेनिस कोर्ट. ये निवेदिता का बैक साइड है. सो देर इज़ नॉट मच एट द बैक साइड एज यू कैन सी. ये ऐसा ही है. यहाँ पे हम लोग उतना आते नहीं हैं. यहाँ पे भी फॉक्सेस दिखते रहते हैं. और वो रहा बाउंड्री वॉल. दिस इज़ द क्रिकेट ग्राउंड. दैट इज़ द फैकल्टी हाउसिंग. दैट्स द सैक बिल्डिंग. एंड मेरे पीछे अभी निवेदिता गर्ल्स हॉस्टल है. एंड नाउ वी गोइंग टुवर्ड्स द स्विमिंग पूल. हाय गुरमीत भाई. एक और बंदा ले लिया. रसल वाइपर देखा है कैंपस में? मतलब बच्चा था या पूरा फुल साइज? No, it's a small child. अच्छा. Small baby. भाई इसको एक रूम में लगाएंगे. अभिषेक तूने कौन सा सांप देखा है यहाँ पे? मैंने देखा नहीं, मैंने बस सुना है. मुझे बहुत डर है सांपों का. हाँ मैंने वो देखा था. आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं बट वो एक ग्रे कलर का होता है. उसमें वाइट वाइट ऐसे स्ट्राइप होते हैं, एरो एरो टाइप. तो लेकिन वो नॉन पॉइजनस था. एंड मैंने वो आते ही तीसरे दिन पे देखा था. इनफैक्ट मैंने अपने हॉस्टल रूम से वीडियो भी बनाया था. इस जगह पे बोल तो रहे हैं कि नया हॉस्टल बन रहा है. होगा. हाँ. नया ही हॉस्टल बनेगा. और वो प्रॉपर नया नाम होगा उसका सब कुछ. यहाँ पे नंबर ऑफ हॉस्टल भी मैटर करता है. बिल्कुल. नंबर ऑफ 3 ही हॉस्टल है, मतलब एक हॉस्टल होना चाहिए. यहाँ पे एक छोटा सा रोज़ गार्डन टाइप रहता है. अभी विंटर में इन लोग ने पिटूनियाज भी लगाए हैं. और आई वाज टेलिंग यू ना कि देयर इज़ वन मोर पॉन्ड दैट आई विल शो यू. सो दिस पॉन्ड इज़ वेरी यूनिक इन द सेंस कि यहाँ पे बहुत सारे विस्लिंग डक्स बैठते हैं. हमने एक इकोलॉजी का प्रैक्टिकल किया था जहाँ पे हमें बर्ड वॉचिंग करनी थी. एंड तभी हमने काउंट किया था. तो लाइक यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि इस एक स्ट्रेच में पता नहीं कितने ऐसे विस्लिंग डक्स हैं. सो स्विमिंग पूल हम लोग उधर से राइट लेके, मतलब फैकल्टी हाउसिंग से एक राइट आता है, उधर भी जा सकते हैं. तो पहले राइस फाउंडेशन पड़ेगा और वेंटिकल यूनिट फिर स्विमिंग पूल. बट हम इस साइड से जाएंगे तो हमें पहले स्विमिंग पूल पड़ेगा, फिर ऐसे मेडिकल यूनिट, फिर राइस फाउंडेशन ऐसे. ये वाला जो रास्ता है ना, वो निवेदिता के बैक साइड वाला जो मैं रास्ता दिखा रही थी, वो यहाँ पे आके कनेक्ट होता है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैकल्टी हाउसिंग्स. एंड अभी यहाँ पे बहुत स्ट्रेट रास्ता दूर जाना है. लेफ्ट साइड हॉस्टल. हाँ नहीं वो ज़्यादा नहीं दिखाना है फैकल्टी का ना, इसलिए. क्या सीसॉ? नहीं वो बच्चों के लिए है. लेकिन ये बोगनविलिया वर्थ शोइंग है यार. जस्ट हाँ वन लुक ऑन. वही वन लुक हो गया फैकल्टी. बस इतना ही. अरे वो यहाँ ना थोड़ा दिख नहीं रहा उतना अच्छे से, या शायद दिख भी रहा हो, बट पूरे बनाना फार्म्स है. इस पे ऊपर जाके ले सकता नहीं यार सांप आ जाएगा. रिस्क नहीं लेंगे. हाँ तो थोड़ा जूम इन करके दिखा दिए. ये पूरा एरिया पूरा बनाना फार्म्स है. है. By the way, this campus is huge because number of student is very less. So according to student, the campus is very huge because have only 3 hostel because of the student is very less. That's why we have less number of hostel. In yesterday's video I told you what was my favorite spot in the campus, but because today we have Gurmeet and Abhishek, तो दोनों को पूछते हैं कि उनका फेवरेट स्पॉट कौन सा है. तो अभिषेक भाई तेरा कौन सा फेवरेट स्पॉट है? TRC 3rd फ्लोर TRC 3rd फ्लोर. कैफे. अच्छा मतलब वो DCS अरेना. CCD कैफे. हाँ CCD का वो कॉफ़ी मिलता है मस्त. तो मतलब TRC बिल्डिंग का 3rd फ्लोर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेस का है. और वहाँ पे स्पेसिफिकली एक DCS अरेना करके है जहाँ पे CCD के कॉफ़ी मिलते हैं. और मैगी वाला वो नहीं होता, पास्ता वगैरह वो सब मिलता है. गुरमीत व्हाट्स योर फेवरेट? By the way, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डर लगता है सांपों से. बट जहाँ भी स्नेक होता है वो मेरा फेवरेट स्पॉट होता है. सो आई लव जहाँ पे मुझे स्नेक मिलेगा वो मुझे अच्छा लगता है. वॉचिंग करना अच्छा लगता है बट डर लगता है थोड़ा सा. और बस देखना अच्छा लगता है. वही मेरा अच्छा स्पॉट है. मतलब ओके इट्स नॉट ए पर्टिकुलर. तो अगर किसी को सांप देखना हो कैंपस में तो कहाँ आना हर है? जगह मिलेगा. रोड ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. ये जो बाउंड्री वॉल है वो स्विमिंग पूल का है. स्विमिंग पूल के अंदर मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि वो अलाउड नहीं है. प्लस अभी पानी है भी नहीं अंदर. समर के मंथ्स में रहता है, विंटर के 3 महीने में पानी निकाल लेते हैं. तो ऐसे जितना हो सकता है बाहर से थोड़ा सा शॉट दिखा देंगे, बट अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अभी तो लॉक्ड ही है वैसे भी. और इंटरेस्टिंग बात है कि हर इलाके का ना अपना अपना एक डॉगी का ग्रुप होता है. दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड एंड अब हम लोग जा रहे हैं इस साइड. तो स्विमिंग पूल इज़ ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड. इस रास्ते में अगर स्ट्रेट चलते रहेंगे तो मेडिकल यूनिट आएगा और काली मंदिर, राइस फाउंडेशन, ये सब भी यहाँ पे स्ट्रेट जाने से आएगा. ओके तो वी रीच द स्विमिंग पूल
एंड वैसे तो लाइक आई सेड कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं होता है क्योंकि सब लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं ना, तो उनकी भी प्राइवेसी होती है। बट अभी फ़िलहाल तो ये बंद है, तो मैं थोड़ा सा जूम इन करके अंदर कैसा है वो दिखा दूँगी। यहाँ एक फाउंटेन सा रहता है, दैट्स इट। काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, अंदर जाने से समझ आता है बट बाहर से उतना समझ नहीं आता। इट्स ह्यूज। जस्ट टू क्लैरिफाई कि मतलब ऐसे जगहों पे सेफ्टी कंसर्न हो सकता है, बट लाइक रिमोटेस्ट से रिमोटेस्ट जगह पे भी कैमरास हैं, तो ऐसा नहीं है कि सेफ्टी कंसर्न है। बट हाँ, आई फील लाइक थोड़ा और ज़्यादा मेंटेन किया जा सकता है इसको, बट एट द सेम टाइम इट्स अ पैराडॉक्स, क्योंकि ये जो इतने सारे बर्ड्स के स्पीसीज़ हैं, इतनी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, दैट इज़ सिंपली बिकॉज कि ये ऐसे ही अनटच रखा गया है। तो तुझे क्या लगता है अभिषेक, ये बेटर है या इसको थोड़ा ऐसे मेंटेन करना चाहिए? मतलब इट्स बीन ओनली अवर सेमेस्टर, हाँ, शायद मुझे और टाइम के बाद मैं कुछ बोल सकूँगा। ओके, फेयर इनफ। गुरमीत, तेरा क्या ओपिनियन है? उसको ऐसे ही रखना चाहिए थोड़ा या? सफाई की ज़रूरत है, बाकी अच्छा है। मेंटेन करने की ज़रूरत है क्योंकि बिना मेंटेन की कोई भी चीज़ आप अच्छे से मतलब कैरी नहीं कर सकते। ये मेडिकल यूनिट है। यहाँ पे हमारे 2 एम्बुलेंसेज हैं। कभी भी कोई भी किसी को कुछ भी दिक्कत होता है तो हॉस्टल में एक कॉल पे ही आ जाता है एम्बुलेंस। एम्स भी तो पास में ही है, तो अगर किसी को एम्स में जाना होता है तो भी एम्बुलेंस आ जाता है। मैं खुद 2-3 बार आ चुकी हूँ एम्बुलेंस में। मेरे को बुखार हो गया था, मैं वॉक करने के कंडीशन में बिल्कुल नहीं थी, तो तुरंत आ जाते हैं। लाइक इतना अच्छा सर्विस है ना, लाइक यू कॉल एंड दे विल बी देयर विद इन 5 मिनट्स मैक्स। This is a lab which is belongs to Earth Science Department. Like you can see that. Can you show that? या Go. दिखाई दे रही है, हाँ हाँ। तो क्या होता है यहाँ पे? I think they are just rock machine for lab purpose. So it is helpful for soil inorganic carbon. और ये सेंटर है हमारा क्लाइमेट चेंज सेंटर ना, ये वाला, ये जो सामने वाली बिल्डिंग है। अच्छा, बाय द वे, अगर छन छन सा आवाज़ आ रहा है दैट्स बिकॉज मेरे बैग में घुंघरू है। आई हैव अ डांस परफॉर्मेंस टुमारो, सो इसके बाद आई विल गो टू द सैक बिल्डिंग टू प्रैक्टिस डांस। तो उसी टाइम पे मैं आपको सारे रूम्स भी थोड़ा थोड़ा दिखा दूँगी। सो मेडिकल यूनिट तक पहुँच चुके हैं। ये वाली जो बिल्डिंग है ये राइस फाउंडेशन है, इसके सामने से व्यू मैं दिखाऊँगी। और अच्छा, ये चेंज कर दिया, ये पहले क्लाइमेट चेंज बिल्डिंग था, अभी इसको सेंट्रल स्टोर बना दिया। हाँ वही। और इस साइड है, मतलब मेडिकल यूनिट से आप अगर ये वाला रास्ता लोगे तो काली मंदिर आएगा। हाँ, ये रास्ता वहाँ पे जाके एंड हो जाता है एंड रास्ते के एंड पे काली मंदिर है। बता दो। उसका नाम नहीं पता। अच्छा, तो मैं बता देती हूँ। के नाम नहीं उसको लाबरा कहते हैं। बेसिकली काली मंदिर में ना हर महीने अमावस्या के दिन भोग लगता है एंड उस भोग में जैसा होता है खिचड़ी, फिर लाबरा, मतलब विच इज़ द 5 सब्ज़ी वाली सब्जी, और ऐसे सब कुछ रहता है। सो वी रीच द मंदिर एंड बाय द वे द पंडित जी सेज कि जो अंदर का चेम्बर है ना, वहाँ पे माँ की मूर्ति के नीचे हमेशा एक नाग रहता है, हमेशा। लाइक वो बोलते हैं नहीं नहीं, अभी इतना ही ठीक है, अभी अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बंद है ना मंदिर। और ये ऊपर शिव जी भी हैं। तो ये राइस फाउंडेशन के बिल्डिंग के साइड से जा रहे हैं हम लोग अभी, एंड वो सामने वही वाला पॉन्ड है जिसके बैक साइड से मैंने तभी वीडियो बनाया था, और अभी हम लोग उसके फ्रंट साइड पे आ गए हैं। आप ही बता दो क्या है राइस फाउंडेशन? राइस फाउंडेशन इज आप वैसे तो सर्च भी कर सकते हो, बट इट इज ए स्टार्टअप इंक्यूबेशन। startup incubator. हाँ। So outstanding, if you have outstanding plan, so you can do startup, your own startup in here. So this is around found. मतलब बेसिकली आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप आओगे तो पीएचडी तक करके फिर साइंटिस्ट ही बनोगे, बट इंडिया इज़ चेंजिंग, सो वी वांट कि यूथ एंटरप्रेन्योरशिप भी करे और अपने रिसर्च से कुछ प्रोडक्ट्स भी बिल्ड करे या फिर कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करे। तो इन्होंने थोड़ा बिजनेस को अभी टच दिया है। एग्जैक्टली, सो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसको भी प्रमोट कर रहे हो। तो एज यू कैन सी दैट इज
द मेन एंट्रेंस एंड राइस फाउंडेशन इज़ द ओनली बिल्डिंग जहाँ पे आप अंदर तभी जा सकते हो जब आपके पास आइडिया है. तो ऐसे आप कभी घुस नहीं सकते हो अनलेस यू हैव एन आइडिया. ये एक और गेट है बट इस गेट का नाम मुझे नहीं पता. बट ये गेट से सीधा आप जाओगे ना तो होरिंघाटा की फैक्ट्री दिखेगी आपको. वेट लुक एट दैट बर्ड, ह्यूज बर्ड. ये रहा राइस फाउंडेशन. ये यहाँ से इस रास्ते से आप जाओगे तो फैकल्टी की बिल्डिंग आएगी. और ये वो वाला पॉन्ड है जहाँ पे विस्लिंग डक बैठे थे. एक्चुअली ये वो पॉन्ड ही है बट लाइक वो थोड़ा उस साइड भी एक्सटेंडेड है. लाइक बीच में थोड़ा सा पार्टीशन आ गया है तो उधर और एक्सटेंडेड होगा तो आपको दिखाई देगा. और इस पॉन्ड में मैंने बहुत बार सुबह वॉक करते टाइम किंगफिशर देखे हैं. राइस फाउंडेशन वाले बिल्डिंग का जो रास्ता है वो यहीं पे एंड होता है एंड एट द एंड इज़ द फैकल्टी हाउसिंग. एंड ये वही वाला क्रिकेट ग्राउंड है. उसके पीछे जो पिंक बिल्डिंग दिख रहा है दैट इज़ निवेदिता. नाउ आई विल गो इनटू सैक एंड आई शो यू व्हाट डिफरेंट रूम्स देयर आर इनसाइड सैक. जब हम लोग स्विमिंग पूल जा रहे थे तो हम लोग इस फेंस के उस साइड में थे. निवेदिता के पास से हम लोग गए थे एंड अभी हम लोग इस साइड पे हैं. दैट्स द सैक बिल्डिंग. अंदर से ही चले जाते हैं. हाँ, तो वहाँ एक ओपनिंग है बाउंड्री में, वहाँ से हम लोग सैक बिल्डिंग में घुस सकते हैं. अलग अलग स्पीसीज़ की बर्ड्स बहुत दिखती हैं यहाँ पे. बर्ड वॉचिंग और अगर आप नेचर लवर हो तो आइजर कोलकाता कैंपस इज़ द बेस्ट फॉर यू. वेलकम टू द सैक बिल्डिंग ऑफ आइजर कोलकाता. सबसे पहले अगर आप राइट हैंड साइड में आओगे तो यहाँ पे आपका जिम है. उसके बाद जो है पहला रूम जो है वो डांस रूम है. उसके बाद कुछ यूटिलिटीज़ है. यहाँ पे फुटबॉल वॉलीबॉल रखा रहता है. वेट चेक करना हो तो इस डोर के अंदर जाना है. ये लिफ्ट है. उसके बाद वहाँ पे टेबल टेनिस खेलते हैं उस रूम पे. यहाँ पे बैडमिंटन है और यहाँ पे टेबल टेनिस है. वहाँ पे थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है बट वहाँ पे अंदर ऊपर नहीं जा सकते. ऊपर से देख सकते हैं क्योंकि बैडमिंटन के लिए पूरा हाई सीलिंग बनाया है. तो पूरा एक फ्लोर मिला के बैडमिंटन और ये टेबल टेनिस के लिए. अगर उस साइड ऊपर देखें तो वो वाला जो रूम है वो म्यूज़िक रूम है. प्रॉपर साउंड पैनल्स लगाए गए हैं वहाँ पे. ड्रम्स वगैरह लोग बजाते रहते हैं. और ये वाला जो है ये लिटरेरी क्लब के लिए है. यहाँ पे आप अगर कभी कुछ डेकोरेशन करना होता है तो वहाँ पे करते हैं. मतलब वो मल्टीपर्पज़ रूम है. फिर उसके बाद अच्छा ये वाला जो बिल्डिंग रूम था वो चेस के लिए. और ऊपर का कुछ है क्या और हाँ, जो हमने मिस किया हो. अच्छा आरसी ड्रामा क्लब का भी एक रूम है. तो अभी सारे रूम्स अंदर से दिखाते हैं. तो अभी ये लॉक्ड है इसके लिए चाबी लेना पड़ता है. हम कभी भी चाबी ले सकते हैं पर मैं सारे रूम्स की चाबी तो लूँगी नहीं तो ऐसे ही दिखा देते हैं. ऊपर से फिर से दिखाएंगे. ऊपर से बेटर दिखता है. this is badminton room, the water cooler, and in the corner side you can see the washroom. यहाँ पे आरसी यानी कि ड्रामा क्लब का रूम है. यहाँ पे आप बहुत सारे प्रॉप्स भी देख पाओगे और यहाँ पे बैठ के सब लोग ऐसे Currently ये ड्रामा locked करते है. हैं. हाँ ये भी लॉक्ड है. एक्चुअली आपको चाबी लेना पड़ता है. हर बार एंट्री करना पड़ता है किसी भी रूम में जाने के लिए. तो अब हम सारे रूम्स तो खोल नहीं सकते. तो ये वाला शायद चेस का है ना. ये वाला टीटी चेस ऊपर है. हाँ तो ये टीटी का है. तो दिस इज़ द टेबल टेनिस. अब लिफ्ट से ऊपर जाते हैं. डांस रूम में लास्ट में दिखाऊंगी क्योंकि डांस रूम में ही मैं जा रही हूँ. व्यू देखो आप पहले. ये देखो ये क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ से हम आए थे. वो वाला रास्ता था. यहाँ से आते आते हम यहाँ से आए. फिर हमने यहाँ से एक शॉट लिया जिससे हमने आपको दिखाया राइट लेफ्ट का कि वहाँ पे कौन कौन से रूम लाई करते हैं. बट अच्छा बाय द वे ये जो सारी पेंटिंग है ना ये भी स्टूडेंट्स ने की है. ये शायद से 10 बर्ड्स दिखाया जा रहा है विष्णु भगवान का. मत्स्य कूर्मा वराह फिर ऐसे पूरा दिखाया गया है. और पता नहीं यहाँ पे कुछ कचरा सा लग रहा है. सॉरी बाय द वे गाइस, इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको. और इतना इतना सब कुछ है ना कि हमें भी पूरे तरह से एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला है एक ही समय के ऊपर. और ये वही वाला room, यहाँ पे बाय द वे गाइस, these are the ये रूम बहुत मस्त है. this is the chess room. I hope you see properly. And again I say that is washroom. यहाँ
Yeah. ऐसा है। और वहाँ पे क्लोज्ड है, बट वहाँ पे भी टेबल टेनिस खेलते हैं लोग, बट अभी वहाँ पे कुछ रेनोवेशन चल रहा है। Guys, have a look of left side of SAC building. So the front of Nivedita Girls Hostels, and there is a gym, and above side is the music rooms. We will show you music room. यहाँ पे जो है बहुत सारे मैट्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली योगा किया जाता है। हाँ, वो रहे तो सारे मैट्स रखे हुए हैं यहाँ पे इस रूम पे। इस रूम में अच्छा, यहाँ पे कैरम खेल सकते हैं आप। ये वाला जो रूम है जो मैं बोल रही थी लिटरेरी क्लब का, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है यहाँ पे। फ़ोटोग्राफी क्लब वाले भी यही यूज़ करते हैं। उस साइड पे एक शेल्फ है जहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं, पेंटिंग, आर्ट वर्क्स, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो आप। और ये लास्ट वाला जो है म्यूज़िक रूम, ये अभी खुला है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है। So I looked in and the person who's playing, I know them, so I don't think they'll mind if we go in. So these are the proper soundproofing panels, as you can see, that is in the entire room. Important thing for cricket lovers. तो अब सीढ़ी से उतरते हैं, ठीक है, क्योंकि उस साइड का व्यू भी बहुत अच्छा था, पूरा ग्लास लगाया। अभी भी कुछ है, आई थिंक ये डिबेटिंग के लिए होगा, क्योंकि Yeah, debating. प्रॉपर कॉन्फ्रेंस Singularity. हाँ, वही वाला वाइब है। तो चलो, तो यहाँ पर से ग्लास लगाया हुआ है, और जो देखते हो तो बहुत अच्छा व्यू आता है। तो सारे रूम के चाबी वहाँ पे हैं और आपको एंट्री करानी होगी। हाय आंटी, वीडियो तो हाय बोलता है। यहाँ के सारे सिक्योरिटी बहुत Thank you very much. Thank you very much. बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये सारे चाबी है सारे रूम्स के, और यहाँ पे आपको एंट्री करना होता है एंड देन आप जा सकते हैं। अच्छा, तो फाइनली एक रूम का चाबी मिला है, तो जाते हैं अंदर। दिस इज द डांस रूम। Okay, so I didn't go into all the rooms of SAC building because like I said कि चाबी लेना होता, बहुत ज़्यादा hassle होता. So this is the campus tour video, इसीलिए मैंने इसमें include नहीं किया. But if you want a separate video where I show all the rooms of the SAC building, then leave it in the comments. I'll definitely make it. This is the lecture hall complex, so I'll show you what it looks like from the inside. That is towards the auditorium. Every floor, all these are classes, and some of the classes are also gallery-like. So they have a huge stage, and so that's only for students where the strength for the class is more than 200 or something like that. Basically the freshers, when everybody has common classes of chemistry, physics, stuff like that. अभी थोड़ा रात हो गया है तो ये सब एरिया दिखेगा नहीं, पर मैंने दिन के कुछ वीडियोस बनाए हैं तो मैं उसको प्लग इन कर दूँगी यहाँ पे। तो ये लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स से निकल के आप स्ट्रेट जाओगे तो वहाँ पे बिमलदा का ओपन कैंटीन मिलता है, और ये जो एरिया है जहाँ पे एक थोड़ा सा हिल है, ये सब का भी मैं दिन का वीडियो इसके बाद प्लग इन करूँगी. सो लाइक दैट होल एरिया अप फ्रंट इज़ इंडियन ओवरसीज़ बैंक, तो वो सारे का भी मैं वीडियो प्लग इन करूँगी. ऑन द राइट इज़ द TRC बिल्डिंग, रिसर्च बिल्डिंग,
गणेश भगवान का मंदिर है यहाँ पे एक, और ये ओपन कैंटीन, और ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक। काफ़ी डिटेल्स में वीडियो बनाया है। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा डिटेल्स एक वीडियो में हो सकता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। फॉर द नेक्स्ट 1 year आई बी मेकिंग मैनी मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू आई। अच्छा, बाय द वे मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि रात को इधर कोलकाता का कैंपस बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो देयर विल बी अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो अबाउट नाइट लाइफ एट आइजर कैंपस, बट उसमें मैं कैंपस टूर नहीं दूँगी। इट विल बी लाइक अ साइलेंट वीडियो जहाँ पे आप बस एस्थेटिक्स देख रहे हो।